غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہی سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شام کے بعد کا وقت تھا۔ اس رات بھی دربار عام کا ہنگامہ تھا۔ باغیوں کی عورتوں کو برہنہ حالت میں نچایا جا رہا تھا۔ کم سن اتھوریا کو راڈرک نے اپنے گھٹنوں پر بٹھا رکھا تھا۔ شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ اتنے میں راڈرک کو اطلاع دی گئی کہ تولیتا سے تھیوڈومیر کا قاصد آیا ہے اور وہ فوراً ملنا چاہتا ہے۔ راڈرک کے اشارے پر قاصد کو اندر بلا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ قاصد نے تحریری پیغام اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے پیغام اپنے ایک مشیر کو دے کر کہا کہ اسے پیغام پڑھ کر سنایا جائے۔ اس نے تالی بجائی۔ دربار میں ایسی خاموشی طاری ہو گئی جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ شہنشاہ اندلس کی خدمت میں سلام و آداب۔ شہنشاہ کے اس غلام نے شاہی خاندان کی آن اور ملک کے وقار کی خاطر ہر لڑائی اپنی جان کی بازی لگا کر لڑی اور جیتی ہے۔ مشیر پیغام بلند آواز سے پڑھنے لگا۔ جہاں کہیں باغیوں نے سر اٹھایا، شاہی خاندان کا یہ غلام موت کا فرشتہ بن کر پہنچا اور باغیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی بتا دے کہ تھیوڈومیر نے کون سا میدان ہرا ہے، مگر یہ کوئی جن اور بھوت تھے جنہوں نے میری آدھی سے زیادہ فوج ہلاک کر ڈالی اور باقی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ کیا تم صحیح پڑھ رہے ہو؟ راڈرک نے اپنے گھٹنوں پر بٹھائی ہوئی لڑکی کو دھکا دے کر پوچھا۔ آدھی فوج ماری گئی، باقی بھاگ گئی۔ کہاں؟ کیا لکھتا ہے کہ وہ جن اور بھوت تھے؟ فوراً پڑھو۔ وہ 4 جہازوں میں آئے اور جہازوں سے اتر کر انہوں نے جہازوں کو آگ لگا دی۔ مشیر پیغام پڑھنے لگا۔ مجھے فوراً اطلاع مل گئی۔ میں اپنی ساری فوج لے کر پہنچ گیا۔ ان کی تعداد میری فوج سے آدھی تھی۔ میں نے ان سب کو کاٹ دینا تھا، لیکن وہ ایسے طریقے سے لڑے کہ میری فوج پر دہشت طاری ہو گئی۔ درختوں سے تیر، چٹانوں سے تیر، کوئی تیر ہٹا نہیں جاتا تھا۔ ان کا ایک بھی گھوڑ سوار نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہمارے عقب سے نہ جانے گھوڑے کہاں سے آ گئے۔ ان کے سواروں نے میری فوج پر ایسا حملہ کیا کہ سنبھل کر پیچھے مڑنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اس پیغام میں تھیوڈومیر نے لڑائی اور اپنی فوج کی تباہی کی تفصیل لکھی اور آخر میں اس نے یہ الفاظ لکھے جو تاریخ میں آج تک محفوظ ہیں۔ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کون لوگ ہیں، نہ یہ پتا چلا کہ آئے کہاں سے ہیں۔ جہاں سے بھی آئے ہیں اور جو کوئی بھی ہیں، بڑے ہی ہونہار اور دہشت ناک ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لٹیروں کا لشکر ہو اور لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے، لیکن انہیں یہیں پر ختم کرنا ضروری ہے۔ میری فوج 15,000 تھی اور ان کی تعداد مجھ سے آدھی تھی۔ اب مجھے اس سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ آخری اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمارا باج گزار وائس یوستا جولین اور وٹیزا کا بھائی اس عجیب و غریب لشکر کے ساتھ تھے۔ جولین، راڈرک نے حیرت زدہ ہو کر گرج کر کہا، او پاس، انہیں موت یہاں لے آئی ہے۔ میں سمجھ گیا۔ وہ غصے کے عالم میں ادھر ادھر لمبے ڈاک برنا ٹہلنے لگا۔ تھیوڈومیر بزدل نکلا۔ میں اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دوں گا۔ اسے یہ بھی دیکھنے کا ہوش نہیں رہا کہ حملہ آور ہیں کون۔ جولین اور اوپاس مجھ سے انتقام لینے آئے ہیں۔ اپنی فوج کے ساتھ وہ بربروں کا لشکر لے آئے ہوں گے۔ میں تھیوڈومیر کو فوج نہیں دوں گا، خود جاؤں گا۔ جولین کی بیٹی فلورنڈا کو اپنے محل میں لے آؤں گا۔ ان بدبختوں کو معلوم نہیں کہ میں غداری کی کیا سزا دیا کرتا ہوں۔ راڈرک اچانک چپ ہو گیا اور اس نے باغیوں کی برہنہ عورتوں کی طرف دیکھا۔ کل صبح باغیوں کو میدان میں چھوڑ کر ان پر گھوڑے دوڑا دو۔ راڈرک نے حکم دیا، کچل کر مار ڈالو اور ان عورتوں کو رکھ لو۔ یہ لڑکی یہاں کے گرجے کے پادری کے حوالے کر دو۔ تمام عورتوں نے آہوزاری شروع کر دی۔ 2-3 عورتیں راڈرک کے قدموں میں جا گریں۔ تم نے ہمیں بہت سزا دے لی ہے، ایک عورت نے روتے ہوئے کہا۔ اب معاف کر دو۔ میرے باپ کے جرم کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ بادشاہ سلامت، ایک جوان سال لڑکی نے التجا کی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا باپ درپردہ کیا کر رہا ہے۔ مجھے گھوڑوں تلے کچل دو۔ ایک اور عورت نے کہا، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ راڈرک نے تینوں کو ٹھوڈ مار مار کر وہاں سے ہٹا دیا۔ اور ظلم کر اندلس کے بادشاہ کمسن استھوریا نے چلا کر کہا، ہمارے آدمیوں پر گھوڑے دوڑا لے۔ ایک مجبور لڑکی کی آہ سن لے۔ تیری بادشاہی پر ہی گھوڑے دوڑیں گے، تیرا نام و نشان نہیں ملے گا۔ تیرے اور تیری بادشاہی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ شاباش، راڈرک نے خوشی کے لہجے میں کہا، میں تعریف کرتا ہوں تیری جرت کی کہ تو اتنے بڑے ملک کے بادشاہ سے ڈری نہیں۔ یہاں آ لڑکی،
मैं तुझे इनाम दूंगा। लड़की इसके सामने जा खड़ी हुई। मुंह सब की तरफ कर ले, रॉड्रिक ने कहा। सब देख लें कि ये लड़की कितनी बहादुर है। लड़की ने रॉड्रिक की तरफ पीठ कर ली। दरबारी उसे देख रहे थे। रॉड्रिक की तलवार उसकी शाहाना कुर्सी के साथ रखी थी। उसने लपक कर तलवार नियाम से निकाली और लड़की की गर्दन पर पीछे से ऐसा भरपूर वार किया कि लड़की का सर कट कर गिरा। फिर उसका धड़ गिरा, जो कुछ देर तड़प कर साकत हो गया। अगली सुबह बागियों को मैदान में ले जाकर एक जगह खड़ा कर दिया गया। एक तरफ 50-60 घोड़सवार खड़े थे। इशारा मिलते ही घोड़े बागियों की तरफ दौड़े। बागी उनसे बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। सवारों ने घोड़े मोड़ मोड़ कर इन सब बागियों को कुचल डाला। इधर शमाली अफ्रीका के दारुल अमारत के रवान में अमीर मिस्र अफ्रीका मूसा बिन नसीर तारक बिन जियाद का पैगाम पढ़कर अपने पास बैठे हुए अहम आदमियों को सुना रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने से दुगने दुश्मन पर पहली फतह हासिल कर ली है। हमारे 300 घोड़सवारों के मुकाबले में 1000 घोड़सवार थे। उंदलस के हर सिपाही के सर पर आहनीहूत था। उनके हथियार हमारे हथियारों से बेहतर थे। अल्लाह ने मुझे फतह के हसूल के तौर तरीके बताए। मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल से रोशनी ली। तीर अंदाजों को दरख्तों और चट्टानों पर और घोड़सवारों को चट्टानों के पीछे छुपा लिया। फिर दुश्मन को पसपाई का धोखा देकर उसे आगे को घसीटा। वो तीर अंदाजों की जद में आ गया तो उस पर तीर बरसने लगे। उंदलस के लश्कर में अफरा तफरी मची तो मेरे छुपे हुए घोड़सवारों ने उस पर अकब से हमला कर दिया। इस तरह अल्लाह के 7000 नाम लेवा 15000 कुफार पर गालिब आए। मैं पैगाम लिखवा रहा हूँ और जो मैं देख रहा हूँ वो अमीर मोहतरम के देखने का मंजर था और ये मंजर खलीफा उल मुस्लिमीन के देखने का था। दुश्मन की लाशें इतनी ज्यादा हैं कि खत्म होने में नहीं आती। जंगी कैदियों से लाशें उठवा रहा हूँ। इन्हें समुद्र में फेंक रहे हैं। जहाँ कहीं गड़ा देखा वहाँ लाशें फेंक कर ऊपर मिट्टी डाल दी, मगर गड़े खत्म हो गए हैं। लाशें खत्म नहीं हुई, बाकी लाशें समुद्र में जा रही हैं। 600 घोड़े हाथ आए हैं। मरे हुए दुश्मन के हथियारों के अंबार लग गए हैं। अब जरूरत मजीद कुमक की है। मुझे बताया गया है कि उंदलस की फौज बहुत ज्यादा है और आगे किला बांध शहर है। मैं कुमक का इंतजार करके आगे बढ़ूंगा। मेरी कामयाबी के लिए दुआ करें। हम अगर शिकस्त खा गए तो वापस नहीं आएंगे। वापस आने का कोई जरिया ही नहीं रहा। हम जिन 4 जहाजों पर आए थे उन्हें मैंने जला दिया है। मूसा बिन नुसैर ने उसी वक्त एक पैगाम खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुलक के नाम लिखवाया। उसमें तारक बिन ज़ियाद की पहली कामयाबी की तफसील लिखी और कुमक भी मांगी। पंपलूना में रॉड्रिक ने हुक्म जारी किया कि यहाँ से तुलिता तक मुनादी करा दी जाए कि बाहर की एक गैर कौम उंदलस में दाखिल हो गई है जो इतनी जबरदस्त और खूनख्वार है कि उसने अपने मुकाबले में दुगनी फौज को काट कर रख दिया है। रॉड्रिक ने अपने हुक्म में कहा कि लोगों को इन हमला आवरों से डराया जाए और कहा जाए कि ये लुटेरों का लश्कर है जो तुम्हारे मालो मता और हमारी बेटियों को अपने साथ ले जाएगा और तुम्हें कत्ल और हमारी अमलाक को नजरे आतिश कर जाएगा। सरकारी अहलकारों ने उसी वक्त घोड़े दौड़ा दिए। वो हर गांव और हर कस्बे के अहलकारों तक पैगाम पहुंचाते तुलिता तक पहुंच गए। फिर हर बस्ती और हर गिरजे में ऐलान होने लगे, किसी मुल्क से समुद्र की तरफ से लुटेरों और कातलों का बहुत बड़ा लश्कर हमारे मुल्क में दाखिल हो गया है। उसने हमारी बहुत बड़ी फौज को तबाह कर दिया है और तूफान की तरह आगे ही आगे बढ़ता आ रहा है। इसके आदमी घरों में दाखिल होकर हर कीमती चीज, नकदी और जेवरात उठा लेते और जवान औरतों को अपने साथ ले जाते हैं। कत्लो गारत करते और घरों को आग लगा देते हैं। इबादत गाहों को भी तबाह कर देते हैं। मासूम बच्चियों को बर्छियों की अनियों में परो कर कह के लगाते और नाचते हैं। शहनशाह उंदलस अपनी फौज लेकर इस खौफनाक लश्कर को तबाह बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं। शहनशाह रॉड्रिक ने कहा है कि हर वो आदमी जो तीर अंदाजी, तेजजनी और नेजाबाजी कर सकता है फौज में शामिल हो जाए। हर उस आदमी को जो फौज में शामिल होगा तनख्वाह मिलेगी और डाकुओं के इस लश्कर से छीने हुए खजाने से हिस्सा मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि तुम्हारी जानें, तुम्हारे घर, तुम्हारे माल और तुम्हारी लड़कियां महफूज हो जाएंगी। लोगों, तैयार हो जाओ, हथियार और घोड़े संभाल लो और अपनी इज्जतें और अपने मालो मता को लुटने से बचाओ। अगर नहीं तो आज ही अपने माल बच्चों को साथ लेकर जंगलों में भाग जाओ और कमजोर जानवरों की तरह छुप छुप कर दिन गुजारो और जब वापस आओगे तो तुम्हें अपने मकानों के जले हुए खंडर मिलेंगे। जुवान और अधेड़ उम्र आदमी जोशो खरोश से इस गैर मुल्की लश्कर के मुकाबले के लिए तैयार होने लगे। उन्हें बताया गया कि शहनशाह रॉड्रिक फलां रास्ते से पंपलूना से तुलिता जा रहा है और फौज में शामिल होने वाले लोग इस रास्ते पर शहनशाह की फौज का इंतजार करें। कुछ इबादत गाहें ऐसी थीं जिनमें ये ऐलान नहीं हो रहे थे। ये यहूदियों की इबादत गाहें थीं। इनकी तादाद ज्यादा नहीं थी। पहले बयान हो चुका है कि उंदलस में यहूदी सबसे ज्यादा मजलूम थे। सनतो हरफत और तिजारत यहूदियों के कब्जे में थी, लेकिन रुपया पैसा उनके कब्जे में नहीं था। इनसे इतने ज्यादा टैक्स और दीगर महसूलात वसूल किए जाते थे कि इनके पास सिर्फ पेट भरने के लिए चांद टके रह जाते थे।
यहूदियों को अछूतों जैसी हैसियत हासिल थी। जब उंदलस का तख्तो ताज वटीजा को मिला तो उसने यहूदियों को ईसाइयों के बराबर दर्जा देकर टैक्स कम कर दिए। उसने ये जालुमाना सिलसिला भी हुक्मन बंद कर दिया कि यहूदियों की खूबसूरत लड़कियों को जबरन पकड़कर गिरजों के हवाले कर दिया जाता था। सिर्फ यहूदियों का ही नहीं, वटीजा ने अवाम का भी मेयार जिंदगी बुलंद कर दिया था। यही हिकमत अमली और इंसान दोस्ती वटीजा के जवाल का बायस बनी। राडरक ने उसके खिलाफ बगावत करा दी और खुद बादशाह बन बैठा। उसने उंदलस का नाच अपने सर पर रखते हुए वटीजा को कत्ल करा दिया। अब जब गिरजों में, शहरों के चौकों में बस्ती बस्ती करिया करिया ऐलान हो रहे थे कि गैर मुल्की हमला आवरों को तबाह बर्बाद करने के लिए लोग फौज में शामिल हो जाएं, यहूदियों की इबादत गाहों में कुछ और खुसर पुसर हो रही थी। एक रोज यहूदियों के 5-6 लीडर एक इबादत गाह में इस मसले पर गौर करने के लिए इकट्ठे हुए कि यहूदियों को किस तरह फौज में शामिल होने से रोका जाए। वो किसी कीमत पर राडरक का साथ देने पर आमादा नहीं होना चाहते थे। राडरक की फौज में शामिल न होना ही एक मसला नहीं। यहूदियों के एक मजहबी पेशवा ने कहा, गौर इस मसले पर करें कि राडरक को हम नुकसान किस तरह पहुंचा सकते हैं। फौज में पहले से यहूदी मौजूद हैं। दूसरे मजहबी पेशवा ने कहा, उन्हें फौज से निकाला किस तरह जाए, इस पर गौर करें। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। एक और बोला, इन यहूदियों को फौज में ही रहने दिया जाए और इन्हें राडरक की फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। क्या ये मालूम हो गया है कि हमला आवर कौन है? इन मजहबी पेशवाओं में से किसी ने पूछा। ये किसी को भी मालूम नहीं, एक ने जवाब दिया। अगर ये मालूम हो जाए तो मैं उनसे मिलकर बड़ी अच्छी साजिश तैयार कर सकता हूँ। हमला आवरों के मुतल्लक पूछने वाले ने कहा, यहूदियों का जहन शुरू से ही साजिश पसंद रहा है। जमीन के नीचे से वार करना इनका ऐसा कमाल है जो किसी और कौम को हासिल नहीं हुआ। इन मजहबी पेशवाओं ने, जिन्हें रबी कहा जाता था, कि तमाम यहूदी घरों में ये इतला पहुंचा दी जाए कि कोई यहूदी राडरक की फौज में शामिल नहीं होगा।